the study of activity series of metals. So, the activity series of metals, the arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity is called the activity or reactivity series of the metals. So, you can see here the reactivity series, which has potassium at the topmost of the series. Okay, that means potassium is a highly reactive element. Then sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, Hg, mercury, silver and gold, aurum. Okay, so from this activity series you can see that the aurum is least reactive element according to this reactivity series. Now what is the work of this reactivity series, or what is the application of this reactivity series? So from this reactivity series we can easily tell about the reactions, whether the reaction will occur or happen or not. Okay, and as well as we can also discuss the nature of the element. Like the metal potassium is kept at the top of the series because its most reactive element. Now the elements which are present above the hydrogen, these elements displaces the hydrogen from the reaction, but the elements present below the hydrogen, they do not displace the hydrogen from the acid or acidic reactions. Okay, now the main points of activity series. First is the electropositive character decreases on moving down the series. That means potassium is the most electropositive element according to this series. So potassium and sodium react with oxygen at normal temperature and burn when heated, forming superoxides, and if oxygen is in limited supply then their oxide is formed. For example, like K plus O2, it will form KO2. Okay, so जैसे कि आपको देख सकते हैं कि यहाँ पोटेशियम और सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या फॉर्म कर सकते हैं, अपने सुपर ऑक्साइड से फॉर्म कर सकते हैं. सुपर ऑक्साइड्स का मतलब जैसे कि यहाँ पर KO2 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो KO2 का अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है, तो जब कुछ इस तरीके से आपके इसकी जो वैलेंसी है वो हो जाएगी +1 और इनकी हो जाएगी -1/2. तो जब भी सुपर ऑक्साइड्स होते हैं तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या वैलेंसी है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, तो ये आपके सुपर ऑक्साइड्स हैं. नाउ यू कैन सी हियर वेरियस रिएक्शंस, लाइक कैल्शियम कैन फॉर्म इट्स ऑक्साइड CaO, MgO, aluminium can form Al2O3, zinc can form ZnO, it is an amphoteric oxide. Fe can form Fe3O4, PbO, copper CuO, Hg HgO, and Ag and aurum Au do not form oxides even on strong heating because they are least reactive. Now metals like calcium and magnesium have no action with air at ordinary temperature. So ये भी क्या कर पाते हैं, अपना एक जो इनका भी रिएक्शन है वो उतना फास्ट नहीं हो पाता है. Now the reducing power of the metals decreases on moving down the series. Reducing power का मतलब होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देना. ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, नीचे की साइड जाने में डिक्रीज़ कर रही है. दैट मीन्स कि जो अपर वाली मेटल्स हैं वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके दूसरा जो एलिमेंट है नॉन मेटल है उसको रिड्यूस कर देती है. ठीक है, तो जो पोटेशियम है वो क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा. नाउ द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द सीरीज. सो यहाँ पर जो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज़ हो रही है. नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू रिड्यूस वाटर टू हाइड्रोजन डिक्रीजेज इन पासिंग डाउन द सीरीज. तो मेटल्स जो कि आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती हैं, अगर रिएक्टिविटी उनकी कम होते जा रही है तो वो हाइड्रोजन को कम डिस्प्लेस कर पाएंगी. पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड during the reaction gets ignited by the heat evolved during the reaction, producing lilac flame and golden yellow flame respectively. पोटेशियम क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है जो कि आपकी लाइलैक फ्लेम देती है, और
जो सोडियम है वो वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। कैल्शियम रिएक्ट्स फेयरली विगरसली विद कोल्ड वाटर बट द हाइड्रोजन डज नॉट इग्नाइट। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो मेटल्स आपके कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर लेती हैं तो वो इतना पहले से ही ऑलरेडी रिएक्टिव हैं कि उनको हॉट वाटर की ज़रूरत नहीं है, उनको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे और जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, कोल्ड वाटर के साथ थोड़ा सा स्लो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी मैग्नीशियम की इस एक्टिविटी की सीरीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ी सी रिएक्टिविटी क्या हो गई है, कम होते जा रही है। तो जैसे जैसे आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखेंगे तो जो नीचे वाले मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो रिएक्टिविटी है वो क्या होते जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, और उसी की वजह से ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस दे रहे हैं। नाउ एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। सो एल्यूमिनियम कैन फॉर्म Al2O3, जिंक कैन फॉर्म ZnO एंड Fe कैन फॉर्म Fe3O4. This is called ferrospheric oxide.